क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि आपके ट्रू बिलीव्स क्या है खुद के लिए, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट। जब आप खुद के साथ कनेक्टेड होते हो ना, तो आसपास के लोग इजीली ट्रिगर हो जाते हैं। अगर मैं कनेक्टेड हूँ खुद से, एंड माई बॉस इज मोर लाइक कि एकदम डिस्ट्रैक्टेड, खुद से कनेक्टेड नहीं है, मशीन बना हुआ है काम करने में, तो आई इफ सडनली आई हैव इम्प्रूव माई कनेक्शन विद माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू पुट माई बाउंड्री कि मैं वीकेंड्स पे गधों की तरह काम नहीं करूंगी। आई विल डू स्मार्ट वर्क 5 days a week। बट अगर आप वीकेंड्स में भी मेरे को बोल रहे हो कि मैं मोटी किताब बेड लेके बैठ के पढूं क्योंकि आप पढ़ते हो, आई विल नॉट डू दैट। आई विल probably invest my weekend into energizing myself for the next week so that I can work exponentially well. Probably I will work on my hobby, or probably I will learn a new skill जो मेरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगी, जो कि मेरी वर्क में रिफ्लेक्ट होगा। So, hello everybody, and welcome to yet another episode of the Achievers Club podcast show. In this particular episode, we have an awesome personality named Malvika Nim, who is a life transformation coach since last 7 years. And in this particular episode, she has dived deeper into her own expertise, that is relationship with own self and self-love. And along with that, she has also shared her own experience in terms of feelings and emotions, and how do we transform our own life from being nobody to being somebody. So please do make sure that you watch this particular episode from the beginning till the end if you're looking forward to transform your life, and along with that you are looking forward to inspire others as well to transform themselves and altogether make a bigger difference in this particular world. So please do make sure that you take full notes and enjoy this particular episode from the beginning till the end. Malvika Nim, ma'am, welcome to the Achievers Club podcast show. How are you? Thank you so much, Sahil, for inviting me here and giving me an opportunity to speak about something that is very close to my heart. Thank you so much. And I am good. How are you? I'm doing amazing. And once again, thank you so much for joining in on our podcast show, because ये जो topic है, although हमने already इस पर discuss कर रखा है in terms of self love and so on, but Mhm. audience के काफी सारे questions थे, and you are also expert in your field. So I thought self love and relationship with self को फिर से लेते हैं, बट एवरी सिंगल जो Mhm. पॉइंट था उसको हम लोग पिन पॉइंट करके उसके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, मे बी वी कैन डिस्कस अबाउट दैट इन दिस पॉडकास्ट. Let's absolutely, we can do that. Perfect. So before jumping into the actual point, uh, like how did you started about this, and what was your past journey all about? Like what were the different points? जो कि because what I have learned from my mentors is that या तो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होता है कि यार मुझे ये अचीव करना ही है, या तो बहुत ही एक पेनफुल पॉइंट होता है इन आवर लाइफ जिसकी वजह से हम लोग खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं. सो व्हाट वाज योर पॉइंट? वाज इट अ पॉजिटिव वन, वाज इट अ नेगेटिव वन, एंड व्हाट वाज दैट सिनेरियो ऑल अबाउट? It could be 4 to 5 years back as well. ऑनेस्टली, ना मेरा पॉजिटिव था ना मेरा नेगेटिव था। ठीक है, दिस इज द Okay. थर्ड एंगल दैट यूल बी गेटिंग हियर। मेरी लाइफ में मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि कुछ नेगेटिव चल रहा है। मे बी आई वॉज नॉट इन एज मच अवेयरनेस। मैं शायद उस वक्त या तो एक्सेप्टेंस में थी या तो डिनायल में थी, और कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग। बट इट जस्ट हैपेंड लाइक कि होता है ना कि समथिंग्स वॉकिंग बाय एंड यू जस्ट नोटिस इट एंड यू डिस्कवर समथिंग न्यू। तो अगर मैं अपनी जर्नी बोलूँ तो इट स्टार्टेड इन 2017, एंड Okay. आई थिंक मैंने तब कॉलेज खत्म ही किया था। एंड माय ब्रदर हैज बीन द वन हु हैज बीन वेरी स्पिरिचुअल। ही हैज एक्सप्लोर्ड अ लॉट। So he was pushing me to do a certain course in energy healing, and he was pushing me continuously for 6 months. He kind of मेरा दिमाग खाया था उसने कि कर ले, because he also needed somebody to talk to about those things, क्योंकि मम्मी पापा, we are from a doctor family, too Okay. much analytical, too much scientifical. So it was difficult to talk about spirituality for him, and I was younger to him. So he pushed me to do a course called pranic healing. एंड आई वाज लाइक ठीक है, इतने टाइम से मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा है, मे बी जस्ट कर लेते हैं, उसको खुशी मिलेगी। एंड द डे आई एंटर दैट क्लास, एंड द डे आई लर्न समथिंग कॉल्ड एनर्जी, द डे आई फेल्ट एनर्जी, द डे आई सी, एक्चुअली विजुअली सी एनर्जी किसी इंसान के चारों तरफ, माई माइंड वॉज ब्लोन। आई वॉज फैसिनेटेड। आई वॉज लाइक ये कौन सी दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है और मुझे पता ही नहीं है। तो दैट वाज माय ओपनिंग गेट टू समथिंग कॉल्ड अ मैजिकल लाइफ, क्योंकि मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूँ इन लाइफ। आई एम वेरी Okay. एनालिटिकल, वेरी प्रैक्टिकल। तो दैट वाज समथिंग एब्सोल्युटली न्यू फॉर मी। एंड वो डिस्कवर करने के बाद पता चला कि
बहुत कुछ है लाइफ में जो एग्जिस्ट करता है और हमें पता नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर इट मालविका, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट इनटू, मैंने बैक टू बैक बहुत जल्दी जल्दी कोशिश की, मैंने डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज सीखी, बहुत कुछ सीखा. एंड दैट इज व्हेन आई अंडरस्टूड कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कि मेरी Okay. लाइफ थोड़ी सी नेगेटिव स्पाइरल में चल रही है. उससे पहले आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट. So that mind blowing experience gave me the doors to open a spiritual life first, and उसके बाद I got connected to myself. I discovered कि अच्छा, I am this way because मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था. I am still carrying that past with me because of which मेरी लाइफ में problems हो रही. तो I entered first, बाद में I discovered कि अच्छा problem है, solve करते हैं. So that And is how I got into it. great. And if possible, like if you're comfortable to share, can you share some of the problems? जैसे कि आपने बताया you were in a negative spiral, because what I feel Hmm. is that जो भी problems होते हैं, बहुत सारे problems ऐसे होते हैं जिसका framework almost similar होता है और बहुत सारे लोग वो face करते हैं. So if Hmm. possible, can you share what are the problems which you faced, and because of spirituality and because of healing, because of self love and so on, आप उसको transform कर पाए, and right now you're the person who you are, and you transform Hmm. from negative spiral to the positive one. What were those problems? सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई डिस्कवर्ड वाज कि मेरी लाइफ में एक पैटर्न था. मैं एक बहुत Okay. इमोशनल इंसान थी, अभी भी हूँ. मैनेज करना नहीं आता था इमोशंस को उस वक्त. तो मेरी लाइफ में मेरे को बहुत लोनलीनेस मिलती थी कि लाइक आई ओनली सॉ पीपल लीविंग माई लाइफ. आई ओनली सॉ पीपल कि छोड़ के जा रहे हैं, चाहे रीजन कोई भी हो. बट आई टुक इट पर्सनली. मुझे उस चीज की समझ नहीं थी कि अच्छा, कोई अगर फॉर एग्जाम्पल रीलोकेट भी हो रहा है, मतलब अगर मैं Mm-hmm. देखूँ, आई वॉज 5 ईयर ओल्ड, 6 ईयर्स ओल्ड, मेरी बेस्ट फ्रेंड रीलोकेट हो रही थी देहरादून क्योंकि उसके फादर की यहाँ शिफ्टिंग आ गई थी. बट हाउ आई इंटरप्रेट इट एज कि माई बेस्ट फ्रेंड इज लीविंग मी, शी डजंट लव मी. Okay. एक छोटा बच्चा ऐसे इंटरप्रेट करता है, एंड आई रियलाइज इज वेरी लेटर इन लाइफ, नॉट एज अ किड. बट उस वक्त ना एक पैटर्न बन गया कि पीपल हु लव मी लीव मी. एंड Okay. आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों का पैटर्न है, क्योंकि बेस्ड ऑन हु आई वर्क विद, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये पैटर्न मुझे भी विजिबली दिखता है. इनफैक्ट कई बार लोगों को रियलाइज नहीं होता, बट उनसे बात करके उनको समझ आता है कि हाँ, दे आर एबल टू आर्टिकुलेट कि हाँ, दिस इज व्हाट आई फील, दैट पीपल लीव मी. तभी लोगों को फीलिंग आती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट, कि मुझे प्यार नहीं मिलता. तो मेरी लाइफ का एक पैटर्न बन गया था कि एवरीबडी लीव्स मी, नोबडी लव्स मी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बन गया था. हर हर साल मुझे ये सेम पैटर्न एक्सपीरियंस करने को मिलता था, जिसकी वजह से मेरी और मतलब जो मेरी एनर्जी ना ऐसे श्रिंक होती गई, श्रिंक होती गई, श्रिंक होती गई. एंड आई वेंट ना एकदम शैडो में, डार्क में. तो दिस इज व्हाट आई रियलाइज कि दैट इनिशियल एक्सपीरियंस completely recreated that pattern in my life. कि as a teen also I faced a lot of bullying. मेरे दोस्त मुझे ऐसे चीजें बोल देते थे कि लगता था कि who is with me, मेरी टीम में कौन है, कोई Mm-hmm. है भी कि नहीं. और I'm dealing with life all on my own. पेरेंट्स नहीं समझते थे कि क्या हो रहा है लाइफ में. कि of course imagine as a teen आपको ऐसे बुरा लग रहा है and you are coming to your parents to talk about it कि ऐसा हो रहा है, I'm feeling bad. एंड उस मोमेंट पे आपको पेरेंट्स भी बोलते हैं कि तुम्हारी कोई गलती होगी, बिकॉज तुमसे सब लड़ रहे हैं, तुम्हें सब ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, तो तुम्हारी क्या गलती है. तो इट्स लाइक यू बिन कॉर्नर्ड कि True. ना दोस्त है, ना पेरेंट्स है, कोई है ही नहीं. सो True. दैट इज व्हेन दैट इज दैट इज व्हाट केप्ट हैपनिंग इन माय लाइफ. एंड बिकॉज ऑफ दैट पैटर्न मुझे रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही मिला कि चीट हो रहा है. मेरे को ऐसे में ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर पा रही थी, हु आर reinforcing that pattern, that they will come, they will make me feel good, and they will leave making me feel even much horrible. और ये बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा था. मतलब अगर इफ आई हैव टू काउंट ऑन माय फिंगर्स, मेरे हाथ कम पड़ जाएंगे. तो दिस इज व्हाट आई एक्चुअली डिस्कवर्ड अबाउट माई सेल्फ कि दिस पैटर्न kept on repeating in my life, and I had to fight against this only कि if somebody leaves me, it doesn't mean that I am a bad person. If somebody leaves me, it doesn't mean that I have done something wrong or I don't deserve people. इस चीज की समझ आई कि my relationship with myself is so bad कि everything is like a mirror. हाँ, तो वो वही रिफ्लेक्ट होगा आपकी लाइफ में. So True. that is what I worked on. That's true. That is what And changed everything for me in life.
दैट्स ट्रू एंड आई फील यही सेम पैटर्न या फिर इसी का ऑलमोस्ट सिमिलर फ्रेमवर्क जो है बहुत सारे लोग फेस करते हैं एंड हाउ डू वी गो अबाउट दैट, उससे बाहर कैसे निकले? बिकॉज आई फील दैट्स अ बिलीफ इन इटसेल्फ एंड वी आर हम्म। अट्रैक्टिंग दोज पीपल की लाइक बेस्ड ऑन आवर बिलीफ. सो हाउ डू वी गो हम्म। अबाउट नेगेटिव लूप टिल द पॉजिटिव वन? लाइक आपने क्या स्टेप्स लिए थे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कवर कि हमारे बिलीव्स हैं क्या, करेक्ट. क्योंकि द परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड विल बी बेस्ड ऑन दोज बिलीव्स। तो सबसे पहले टू आइडेंटिफाई कि हम हमारा बिलीफ है क्या वर्ल्ड को लेके, खुद को लेके। वर्ल्ड को लेके तो बाद में आएगा, क्योंकि हाउ वी सी द वर्ल्ड इज हाउ वी सी आवरसेल्व्स फर्स्ट। तो आपको डिस्कवर करना पड़ेगा बैठ के कि हाउ डू आई फील अबाउट माई सेल्फ। इफ आई लुक इन द मिरर, डू आई फील गुड, डू आई फील बैड, डू आई वांट टू लुक अवे फ्रॉम द मिरर। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका बिलीफ खुद के लिए क्या है। खुद के लिए कैन बी इन मल्टीपल एस्पेक्ट्स की। अपीयरेंस वाइज आपका बिलीफ क्या है आपके लिए, विजुअली, ठीक है। देन हेल्थ वाइज क्या है? अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेस्ड हो, आप अनहेल्दी हो, तो हाँ आप अनहेल्दी हो, वही ओके. रिक्रिएट होगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर बिलीव्स विद रिस्पेक्ट टू आपका विजुअल, व्हाट यू डू एज अ पर्सन, कि आपकी स्किल्स क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, आपके रिलेशनशिप्स में। हम्म, आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो लोगों की लाइफ में, आप क्या लोगों से एक्सपेक्ट करते हो, आपके कौन से रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, कौन से रिलेशनशिप में अभी भी मेहनत लगनी है, जो अभी काम नहीं कर रहे हैं आपके लिए ढंग से। सो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी फर्स्ट। क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि आपके ट्रू बिलीव्स क्या हैं खुद के लिए, you will not be able to change it. So first I would say कि connect with yourself, sit with yourself, identify who you are, who you think you are. क्योंकि चेंज ओके. उसके बाद सब हो सकता है। अगर ये बिलीफ क्लियर हो गए, देन यू विल फाइंड कि व्हाट बिलीव्स आई वुड वांट टू हैव, जिससे मेरा फ्यूचर इंप्रूव हो, जिससे मेरे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो, जिससे मेरा मेरा करियर इंप्रूव हो, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। And then we have to make a choice कि I want to drop this old belief and I want to have this new belief. Only then I will be able to move forward in life. So the most important part is self discovery कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, what I believe about myself is, this is what I think. It's very important. इसके बिना कोई कुछ नहीं चेंज कर सकता। True. And what are the different practices which an ideal person can follow so that उनको समझ में आ सके कि like हमारे present beliefs क्या हैं and they can just go about their own self discovery thing. If I were to say that, एक डेली हैबिट, जैसे आप जर्नलिंग करते होगे, तो जर्नलिंग में यू कैन हैव वीकली प्रॉम्प्ट्स। डेली तो नहीं होगा क्योंकि बिलीव्स हर दिन इतने इजीली चेंज नहीं होते। वीकली मंथली आप बिलीव्स का एक, ऐसे बोलते हैं ना, ऑडिट कर सकते हो कि Okay. यू कैन सेग्रीगेट इन अ वे कि, जैसे मैंने बोला कि विजुअली, अपीयरेंस वाइज, तो आप देख सकते हो कि आर यू हैप्पी विद हाउ योर कॉम्प्लेक्शन लुक्स, आर यू हैप्पी Mm-hmm. विद द ग्लो ऑफ योर फेस, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं विजुअल को। ब्राइटनेस देख सकते हो अपने अपने आप को देखने की, अपना वेट देख सकते हो, अपना अपनी फिटनेस देख सकते हो कि मस्कुलर है, टोन्ड है बॉडी, फैट है बॉडी, क्या है। सो यू हैव टू चंक इट डाउन, बिगर प्रॉब्लम। तो आपने ऐसे वेट का कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपको करियर का करना है, तो इट्स लाइक अ प्रॉम्प्ट सिस्टम, लाइक जर्नल करते हैं लोग। Uh-huh. ग्रेटिट्यूड जर्नल होता है, 3 थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, 3 थिंग्स यू वांट टू इम्प्रूव, 3 थिंग्स यू लव अबाउट योरसेल्फ, ऐसी चीज होते हैं। इट्स लाइक आप बिलीफ का जर्नलिंग कर रहे हो, लेकिन ऑडिट। तो आपने बॉडी के लिए कर लिया, अब आप करियर के लिए कैसे कर सकते हो कि मैं इस पोजीशन पे हूँ इस वक्त, दिस इज व्हाट माय एजुकेशन वाज, 2 साल में मैं इस पोजीशन पे हूँ, दिस इज हाउ मच आई अर्न, एम आई हैप्पी विद इट, एम आई नॉट हैप्पी विद इट, व्हाई एम आई नॉट हैप्पी विद इट, इफ आई एम हैप्पी विद इट, व्हाई एम आई हैप्पी विद इट। मैं टीम में कनेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने ऑफिस में कि नहीं, मैं क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, और मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो क्यों कर पा रहा हूँ। हाउ इज माई रिलेशनशिप विद माई बॉस, how is, am I doing something to improve my skills as a specialist in that field. So you have to continuously audit your stuff to understand कि मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ। It's like very simple but complicate कर देते हैं हम कि कैसे खुद के बारे में जाने। It's as simple like you just sit in front of the mirror and talk to yourself, like you talk to a friend and ask simple questions कि और ऑफिस कैसा चल रहा है,
एंड देन आंसर योर सेल्फ एज वेल कि यहाँ ऑफिस ऐसा चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो गई है, मुझसे ये नहीं हो रहा. So that is when it clicks कि अच्छा मुझसे ये नहीं हो रहा. So now you already have something to work on कि ये नहीं हो रहा. Now it's the what important is कि क्यों नहीं हो रहा और क्यों करना है. क्या पता जरूरी नहीं है करने के लिए, क्या पता True. इतना जरूरी है कि you are just too overwhelmed with the problem rather than solving it. क्या पता आप अपने अपने फ्रेंड से एक बार वो क्वेश्चन पूछ लोगे और आपको तुरंत एक ऐसा सिंपल सा जवाब मिलेगा जिससे आपका वो क्रैक हो जाएगा प्रॉब्लम. यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट. तो एक True. सिंपल ऑडिट की तरह आप अपना मंथली चेक कर सकते हो टू नो योर सेल्फ. इट्स लाइक टॉकिंग टू योर सेल्फ बट इन अ वे कि यू डोंट हैव टू कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज क्या है तो ये नहीं करा तो वो नहीं करा तो ये नहीं करा, बट बोल लेकिन ना जैसे दोस्त के साथ करेंगे. अब मुझे नहीं पता लड़के आपस में कैसे करते हैं, लड़कों का रिलेशनशिप इज मच डिफरेंट देन हाउ फीमेल फ्रेंडशिप्स आर. True. बट या थोड़ा सा इन अ वे कि इन अ सपोर्टिव वे दैन अ harsh criticizing way, ताकि you're giving that yourself a chance to improve and also appreciate where you are right now. So that is something anybody can start with to build that awareness about yourself. The audit helps a lot. ट्रू. एंड जैसे आपने बहुत सारे एरियाज बताए, लाइक यू मेंशन्ड अबाउट करियर, यू मेंशन्ड अबाउट योर ओन हेल्थ. तो आई फील देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप एज वेल. लाइक वंस वी स्टार्ट लविंग आवरसेल्फ, तो बहुत सारे एरियाज हैं जिस पे ऑटोमेटिकली अफेक्ट होता है, विच वी विल डिस्कस फर्दर इन दिस पॉडकास्ट. बट जैसे आपने बताया, लाइक while doing this particular practice of mirroring, and even while writing, there are a lot of people, because even uh, I don't know about me, but abhi to I'm completely comfortable while sitting alone for hours and hours. Like I can Hmm. introspect about what are the things which are going right, what are the things which are going wrong. But Hmm. for the starters, बहुत सारा वो Hmm. होता है, नेगेटिव लूप में चले जाते हैं कि यार they are not even able to look at themselves, they are not even able to do eye contact with themselves in a mirror. So how do we Hmm. start that particular practice? Because what I did is, because this is what my mentors told me, कि like अगर आप खुद पे फोकस नहीं करोगे, nobody else is going to focus on yourself, right? So Absolutely. how do we go about those people? Like वो कैसे start कर सकते हैं? For them, I would say कि just do it क्योंकि there will always be a resistance. There will always be something that will block them. अगर आप करना चाहते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको जिम जाना है, Mm-hmm. सुबह अलार्म बजते ही एक अंदर आवाज आएगी कि थोड़ा सा और सो जा. Correct. हर किसी की आएगी, मेरी भी आती है. इनफैक्ट दिस इज व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग विद दीस डेज क्योंकि मैंने रिलेशनशिप विद स्लीप इतना इंप्रूव कर दिया कि माय रिलेशनशिप विद जिम एंड वेकिंग अप अर्ली हैज गॉन डाउन थोड़ा. तो दिस इज व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग विद. तो यू जस्ट हैव टू डू इट एनीवे क्योंकि रेजिस्टेंस इज ऑलवेज देयर. अगर आप फॉर एग्जाम्पल हम मिररिंग की बात कर रहे हैं, तो मिरर के सामने अगर नहीं हो रहा है तो मे बी टेक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट लुक एट इट. इट्स नॉट लाइक कि आप अपने आप को लाइव देख रहे हो इस वक्त, तो वो Correct. एक थोड़ा सा सबकॉन्शियसली कुछ अलग इम्पैक्ट होता है देन लुकिंग डायरेक्टली इन द सेल्फ इन द मिरर. बट अगर आप किसी पुरानी पिक्चर को देखो, प्रोबेबली अ हैप्पी पिक्चर, इट कैन रीइंफोर्स समथिंग गुड इन यू. या तो आपको Correct. वो एक अच्छे टाइम की याद दिला देगा. एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहती है कि द मोर यू लुक एट समथिंग यू बिकम दैट. तो इफ यू आर लुकिंग एट अ हैप्पी पिक्चर ऑफ योर सेल्फ जस्ट फॉर अलार्म लगा लो 30 सेकेंड्स या फिर 60 सेकेंड्स का एंड स्टार्ट विद दैट एंड जस्ट लुक एट इट एंड ऑब्जर्व कि हाउ यू आर फीलिंग. आर यू फीलिंग गुड? इफ यू आर फीलिंग गुड, कंटिन्यू इट एज लॉन्ग एज यू कैन. इफ यू आर फीलिंग बैड, 30 सेकेंड करो और फिर हटा दो एंड देन इवेंचुअली यू मे गेट यूज्ड टू इट. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये काम ना करे, तो उन लोगों को थोड़ा अपने अंदर गहराई में जाना पड़ेगा प्रोबेबली मे बी टू सीक हेल्प एज वेल. क्योंकि एक होता है ना कि सबसे अंदर का एक तार है जो थोड़ा सा ऐसे अलग हो रखा है, अगर कोई उसको ठीक कर देगा तो इट विल बी मच इजियर टू लुक एट दैट पिक्चर. True. उस केस में मतलब कि बिल्कुल नहीं हो रहा है कि कुछ भी कर लूं नहीं हो रहा है, इतने 2-3 महीने ट्राई कर लिया नहीं हो रहा, तो मे बी दैट इज योर साइन टू सीक सम हेल्प. True. दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. That's true. बट अगर मिरर के सामने नहीं हो रहा था, द पिक्चर वर्क्स. Correct. Because I feel like
अगर हम लोग मिरर के सामने भी रुकते हैं, सो अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट जजिंग कि यार मैं बात करते वक्त कैसा दिखता हूँ, हाउ आर माई आईज एक्सप्रेसिंग ऑन व्हाट आई एम टॉकिंग एंड सो ऑन. तो इट्स गुड टू स्टार्ट विद अ पिक्चर एंड देन धीरे धीरे जैसे ही हमको प्रैक्टिस हो जाती है, यू कैन टर्न ऑन टू स्ट्रेट अवे मिरर. दैट विल हेल्प एज वेल, एंड समटाइम्स बिकॉज वो इवन हैबिट बन मिरर्स, जाएगी. सॉरी टू इंटरप्ट यू, समटाइम्स इवन या मिरर से भी इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी है विच आई हेल्प विद, मतलब मैं बाकी लोगों को सिखाती हूँ कि जस्ट पिक आउट योर फोन, अपना फ्रंट कैमरा ऑन करो, वीडियो ऑन करो, ओके. और सिर्फ 60 सेकेंड्स की एक वीडियो बनाओ. टॉक नॉनसेंस. सामने दीवार दिख रही है, एक पोस्ट इट लगा है, जस्ट टॉक नॉनसेंस एंड जस्ट लीव इट. 60 सेकेंड्स बाद छोड़ दो. इट्स ओके. लाइक यू आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग जितना मोबाइल के फ्रेम में आपको दिख रहा है. यू आर नॉट लुकिंग एट योर होल बॉडी. प्रोबेबली किसी के करेक्ट. लिए बॉडी को देखना डिफिकल्ट है क्योंकि दे फील कि उनकी बॉडी इस शेप में नहीं है, मोटी है, पतली है, वट एवर. बट एटलीस्ट दिस हैज रिस्ट्रिक्टेड योर विजन कि हाँ सिर्फ इतना दिख रहा है. एंड इवेंचुअली यू गेट यूज टू इट, यू ट्रू. गेट कंफर्टेबल विद इट. प्रॉब्लम ये है कि वी नोबडी इज एक्चुअली यूज टू लुकिंग एट आवर सेल्फ, क्योंकि हम दुनिया को दिख रहे होते हैं, हम अपने घर वालों करेक्ट. को देख रहे होते हैं, हम खुद को इतना नहीं देख रहे होते हैं. सो वी आर जस्ट नॉट यूज टू इट. दैट्स ट्रू. यूज टू इट के लिए तो आई थिंक ऑल दीज छोटे छोटे हैक्स विल वर्क वेरी efficiently for somebody who is trying to get there. दैट्स ट्रू. एंड जैसे आपने करियर वगैरह के बारे में बताया, सो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, इफ आवर रिलेशनशिप विद आवरसेल्फ इज वेरी ग्रेट, सो व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज जिस पे वो इम्पैक्ट करेगा, एंड व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज जिसमें बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लाइक आ सकता है. आप सिर्फ करियर का मुझसे पूछ रहे हो कि जनरली किसी भी नहीं, ओवरऑल एस्पेक्ट में? ओवरऑल ओवरऑल व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज. तो इफ योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ इम्प्रूव्स या फिर अच्छा है, तो इट कैन हैपन इन टू वेज. ओके. कि एक है कि सिंस नाउ यू आर कनेक्टेड टू योर सेल्फ, यू आर व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर सेल्फ यू विल नेचुरली बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे पता है ये करेक्ट. मेरी स्ट्रेंथ्स है और मुझे पता है कि मेरी वीकनेसेस है. तो आई हैव नोबडी टू प्लीज. मुझे पता है मैं इसमें खराब हूँ, तो अगर कोई मुझे इस बारे में बोलेगा भी तो आई वुडंट केयर. मुझे पता है कि मैं खराब हूँ, ट्रू. है ना? तो इससे क्या होगा, यू विल ऑलवेज बी इन अ पोजिशन टू वर्क थ्रू योर स्ट्रेंथ्स. कि मतलब अगर कोई टास्क आएगा ऑफिस में, यू विल बी पुशिंग टू इंक्लूड योर स्ट्रेंथ्स इन अ वे कि वो टास्क कंप्लीट हो जाए, एंड यू विल प्रोबेबली अप्रिशिएटेड फॉर दैट. तो इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगी, करियर ग्रोथ होगी, आपको अप्रेजल मिलेगा. अच्छा, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन फॉर गुड फॉर यू. बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट टू इट कि जब आप खुद के साथ कनेक्टेड होते हो ना, तो आसपास के लोग इजीली ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि वो फॉर व्हाट? एक डिस्कनेक्टेड है अपने अब. जैसे अगर मैं कनेक्टेड हूँ खुद से, एंड माई बॉस इज मोर लाइक कि एकदम डिस्ट्रैक्टेड, खुद से कनेक्टेड नहीं है, मशीन बना हुआ है काम करने में. तो आई इफ सडनली आई हैव इम्प्रूव माई कनेक्शन विद माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट टू पुट माई बाउंड्री कि मैं वीकेंड्स पे गधों की तरह काम नहीं करूंगी. आई विल डू स्मार्ट वर्क 5 days a week. बट अगर आप वीकेंड्स पे भी मेरे को बोल रहे हो कि मैं मोटी किताब बेड लेके बैठ के पढूं क्योंकि आप पढ़ते हो, आई विल नॉट डू दैट. आई विल प्रोबेबली invest my weekend into energizing myself for the next week so that I can work exponentially well. Probably I will work on my hobby, or probably I will learn a new skill जो मेरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगी, जो कि मेरी वर्क में रिफ्लेक्ट होगा. बट फॉर माई बॉस, जिसकी खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ऑफिस में ही बैठा है, प्रोबेबली वीकेंड से भी ऑफिस आ रहा है, पढ़ रहा है, नए प्रोजेक्ट्स कर रहा है, ऑफकोर्स वो करियर वाइज अच्छा करेगा. बट वो जो खुद से कनेक्टेड लोग हैं ना, उनसे थोड़ा सा ट्रिगर्ड रहेगा कि व्हाई व्हाई इज दिस एम्प्लॉय नॉट डूइंग इट, इसको निकालो यार, ये काम का नहीं है, इसमें एटीट्यूड है. तो ट्रू. ऐसे ट्रिगर भी होंगे लोग. दैट्स ट्रू. तो करियर में इट कैन गो ईदर वे. सो इट्स ऑल अबाउट, आर यू इन द राइट एनवायरमेंट और नॉट. आई ट्रू. वुडंट सी दिस ट्रिगर पार्ट एज अ सेटबैक, क्योंकि दिस इज योर चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू बी इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे आप एक्चुअली ग्रो करोगे. दैट्स ट्रू. एक लोटस एंड को अगर आप मिट्टी में गाड़ दोगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, बट अगर आप उसको दलदल में डालोगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो बहुत करेगा. अच्छे से ग्रो करेगा. ट्रू. हाँ. दैट्स सो रियली दैट ट्रू. एनवायरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दैट्स ट्रू. एंड इनफैक्ट आई फील कि लाइक जो लोग
जस्ट रोबोट की तरह काम करते हैं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, दे आर नॉट कनेक्टिंग विद देमसेल्व्स, एग्जैक्टली। वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, नॉट जस्ट विद द पीपल दोज आर कनेक्टेड विद देयर ओन सेल्फ, जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया, बट इनफैक्ट दोज आर द पीपल जो अपनी फैमिली से भी बहुत डिस्कनेक्टेड रहते हैं, उनके एब्सोल्युटली। बहुत सारे प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, दैट इज व्हाई लाइक आई फील दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल जिनको इन सारी चीजों पे काम करना चाहिए. दैट्स ट्रू। बट दीज पीपल आर वेरी गुड अगर किसी की कंपनी की ग्रोथ बढ़ानी है, बिकॉज दे आर थोड़ा सा सिर्फ एम्बिशियस, या फिर बोलेंगे, या फिर सिर्फ स्टेटस चेजिंग लोग होते हैं कि वी वांट टू ग्रो, हाँ, वी वांट टू स्टेटस गो टू द ड्रिवन. न्यू पोजीशन एंड ऑल दैट. ऑफ कोर्स प्रोबेबली लोगों की पर्सनल लाइफ वुड बी इन अ डिप, बट वी डोंट नो. बट यूजुअल केसेस में यही होता है कि आप इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हो, आप इतना खुद से डिस्कनेक्ट हो चुके होते हो कि यू विल रीच अ बर्नआउट पॉइंट. यू विल रीच अ फेज जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व फेस करनी पड़ेगी, जो शायद यू नॉट इवन इक्विप्ड टू सॉल्व, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से कनेक्टेड ही नहीं हो. कोई भी प्रॉब्लम ट्रू. सॉल्व करने के लिए यू हैव टू कनेक्ट बैक टू योर सेल्फ, टू बी एबल टू सी थ्रू एक्यूरेटली, टू बी एबल टू एक्चुअली ढूंढना कि भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं. दैट्स ट्रू. तो दैट ऑल्सो हैपेंस. एंड अगर पर्सनल लाइफ में देखूं, किसी कोई इंसान कनेक्टेड टू योर सेल्फ है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ हुआ था. तो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय बिजनेस, ये कोचिंग बिजनेस, तो इट डिमांडेड लॉट ऑफ माय टाइम यूटिलाइज्ड फॉर दिस ओनली, कि मेरे को काम पे फोकस करना है, क्योंकि I have to make it work. I can't afford to lose my time onto something that is not adding a lot of value to me, कि मेरा नुकसान हो रहा है. तो फिर इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं टाइम पे सोऊं, टाइम पे उठूं. ट्रू. बट बात यह है कि यहाँ पे मेरे साथ मेरी मॉम्स होती है, एंड और कभी कभी मेरा भाई भी आ जाता है. सो एक रेजिस्टेंस आ जाता है कि ये लोग हैं, मैं काम नहीं कर पा रही, मैं इनको बोल भी नहीं पा रही कि हेलो मेरा काम इंपॉर्टेंट है, प्लीज इतने बजे तक सॉर्ट कर लिया करो, क्योंकि दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, मुझे इतने बजे तक सोना ही है, मुझे मत ट्रू. जगाओ. बी यू नो सपोर्टिव टू इट. बट मैं अगर देखूं, उससे पहले मैं एक बहुत ही पीपल प्लीजिंग पर्सन थी. मुझे अपनी फैमिली को प्लीज करना आज भी बहुत पसंद है, बट मेरी खुद की एक बाउंड्री नहीं थी कि दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. आई वाज नॉट सेइंग नो टू देम. मैं उनकी बात हमेशा मान लेती थी, उनके लिए करो, दे दो, अपना 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 थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं, उनके लिए कर दो, प्यार है. द मोमेंट आई चेंज, आई बिल्ड दैट कनेक्शन विद माई सेल्फ अगेन कि हाँ दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई नीड टू टेक एक्शन. मैं नहीं लूंगी तो कौन लेगा. एंड आई असर्टिव होके मैंने बोला कि हेलो मुझे टाइम पे सोना है, मुझे टाइम पे जगना है, टाइम इज वेरी प्रेशियस फॉर मी. इनिशियल मुझे बहुत रेजिस्टेंस मिला घर वालों से, बिकॉज दे आर यूज टू अ वर्जन जहाँ पे मालिका हमेशा हाँ बोलती है. दे आर यूज ट्रू. टू अ वर्जन जहाँ पे मालिका हमेशा बोलती है कि हाँ मैं कर लूंगी, आप तकलीफ मत करो. सो दे वर ट्रू. फेसिंग अ न्यू मालिका हु दे बिलीव कि ये अचानक से एरोगेंट हो गई है, हु दे बिलीव कि अचानक से रूड हो गई है, हु दे बिलीव कि अचानक से मालिका सेल्फिश हो गई है. ट्रू. तो ये रेजिस्टेंस पार्ट भी आएगा, मेरी लाइफ में भी आया. एंड इट वाज, आई मैं शुगर कोट भी नहीं करूंगी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. आई हैड माई नाइट्स, मैं रो रही हूँ, आई हैड माई डेज, मैं सोच रही हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैं करूँ भी कि नहीं करूँ, मैं छोड़ दूँ क्या, ये सब भी आया. बट वो एक फेज में ही आया. दे ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड गॉट यूज टू इट कि हाँ शी इज नॉट डूइंग टू हर्ट अस, शी इज नॉट डूइंग कि वो हमसे बदतमीजी कर रही है, शी इज डूइंग क्योंकि शी डजंट हैव अ चॉइस, इसको इसके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए वो कर रही है. दे ऑल्सो ट्रू. अंडरस्टूड आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, एंड वो रेजिस्टेंस चला गया. सो दिस इज दिस विल ऑलवेज बी देयर कि द मोमेंट यू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपके रिलेशनशिप्स में कुछ गड़बड़ होगी, ट्रू. क्योंकि एवरीबडी इज यूज टू अ वर्जन विच दे आर फेमिलियर विद. अब आप बदल रहे हैं, फॉर गुड आप बदल रहे हैं, बट दे आर स्टिल अटैच टू योर पुराना वाला वर्जन. ट्रू. तो वो एक्सेप्टेंस आने में कि हाँ शी इज ग्रोइंग, वो एक्सेप्टेंस आने में कि हाँ दिस इज फॉर गुड ओनली, कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है. सो यू हैव टू बी अ लॉट मोर पेशेंट, अ लॉट मोर रेजिलियंट कि हाँ तकलीफ हो रही है, गिल्ट हो रहा है घर वालों को बोल के कि ये करो वो करो, वो गिल्ट आएगा. बट यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ कि इफ यू आर क्लियर कि इफ यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, एंड इफ यू आर डूइंग इट इन नॉट इंटेंशनली टू हर्ट योर फैमिली, देन इट्स सॉर्टेड. बस आपको थोड़े टाइम खड़े रहना है वहां पे. यू जस्ट हैव टू डोंट लूज ऑन इट. दैट ट्रू. इज वन चैलेंज दैट एवरीबडी हैज टू गो थ्रू. और उसमें
तपस्या ही लगती है नेचुरली, उसमें कोई मैजिक नहीं हो सकता कि ये एक्सपीरियंस करना ना मिले। उस वक्त यू जस्ट हैव टू बी देयर। आई विल स्टैंड फॉर माई सेल्फ इवन इफ आई एम फीलिंग हॉरिबल, इवन इफ आई एम फीलिंग गिल्टी, मैं आई विल पुश इट, आई विल पुश थ्रू। तो दैट दैट्स ट्रू, आल्सो हैपेंस। दैट्स ट्रू। एंड बहुत सारे लोग लाइक ये डिस्कस करते हैं कि हाउ डू वी डील विद नेगेटिव एनवायरनमेंट एंड सो ऑन, बट हम इसको अलग एंगल में लेते हैं। लाइक एज यू मेंशन कि लाइक आपकी फैमिली मेंबर्स जो भी थे, they also started understanding that you are working on all of your stuff and it's for the betterment of overall family and so on, and even for a lot of people because it's making a bigger difference. So what are the different points which our family members, our parents need to keep in mind, because it's like वो comfort zone जो होता है वो थोड़ा चला जाता है. So how do they take control of this thing? सबसे पहली चीज कि ये दिस इज जनरल टू एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज, True. कि द मोमेंट यू थिंक कि हाँ लाइफ हो गई, मुझे नहीं बदलना, यहाँ पे गड़बड़ होगी। सो वन Correct. थिंग I would advise a kid, a teen, an adult, a senior citizen, even a person in 19s, don't stop learning. Correct. Never stop thinking कि अब हो गया बस। तो छोटी सी सीखो, बट कंटिन्यूअसली लर्न समथिंग, क्योंकि द मोमेंट यू स्टॉप दैट ना, आप मेंटली स्टबन बन जाते हो, आप मेंटली अटक जाते हो। एंड आपको लगता है कि फिर मैं नहीं बदल रहा तो लोग क्यों बदल रहे हैं, एंड यू फील वेरी हर्ट। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस इज कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, दे आर मेकिंग देयर ओन डिसीजंस, दे आर नॉट इंक्लूडिंग अस। हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा, हमने इतने साल लगाए, इनको पाला पोसा बड़ा किया, खिलाया पिलाया, एजुकेट किया, इन्वेस्ट किया इतना कुछ, एंड दिस इज हाउ दे आर ट्रीटिंग अस। हमारी वैल्यू ही नहीं है। बट पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि योर किड, योर चाइल्ड इज एन इंडिविजुअल। आपके जैसे सपने थे या आपकी जैसी एजुकेशन थी, आपकी एक फैमिली बन चुकी है, यू आर अराउंड दैट, बट इस इंसान को तभी भी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है ढंग से। True. अगर आप चाहोगे कि वो आपकी तरह फंक्शन करे, तो वो आपकी आइडेंटिटी जी रहा है इस वक्त। आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो मैनुअल में कि ये करना है, और वो ये जी रहा है। दिस पर्सन डजंट नो कि ये कौन है। दिस पर्सन डजंट नो कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। दिस पर्सन डजंट नो कि इसका पर्पस क्या है लाइफ का। सो True. द बेस्ट थिंग टू दैट पेरेंट्स कैन डू इज कि अपने बच्चों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करें कि हाँ ये एक अलग इंसान है, मेरी एस्पिरेशंस अलग हैं, मेरे बच्चे की एस्पिरेशंस अलग होंगी, एंड आई शुड, द मैक्स आई कैन डू इज सपोर्ट दैट पर्सन। कि हाँ, True. अगर मेरा बच्चा फिसले, इवन एज एन अडल्ट, 30 ईयर ओल्ड अडल्ट भी फिसले, तो मैं एटलीस्ट हूँ उसको उस वक्त सपोर्ट करने के लिए। बट उसको गलतियां करने दो। वो आप 20 साल बाद शायद नहीं होगे, तब उसको कौन सिखाएगा। तो जब तक आप हो, उसकी शील्ड बन के उसको सीखने दो, क्योंकि आपके पास तो एक स्टेबिलिटी आ चुकी, आपका करियर सॉर्ट हो चुका है, आपके पास एक फाइनेंशियली कुछ चल रहा है, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, एंड नाउ यू आर लाइक रिटायरमेंट लाइफ चल रही है अगर आपकी। तो नाउ यू कैन बी दैट बबल फॉर योर चिल्ड्रन की। हाँ, यू एक्सप्लोर लाइफ, सीखो। एक्सपोजर से ही सीखता है इंसान, मैनुअल से नहीं सीख सकता है इतना ज्यादा। तो पेरेंट्स शुड बी मोर एक्सेप्टिंग एंड सपोर्टिव इन चीजों में, एंड इवन दे ऑल्सो शुडंट टेक थिंग्स पर्सनली, इज व्हाट आई फील। एंड उसके लिए भी मेहनत ये है कि पेरेंट्स आल्सो शुड बी कनेक्टेड टुवर्ड्स देम, टू देमसेल्फ। उनको भी That's so true. वो कनेक्शन खुद के साथ इम्प्रूव करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। एंड इंडियन फैमिलीज में कल्चरली वो चीज़ नहीं होती है, क्योंकि True. हमसे ओल्डर जनरेशन आर ड्रिवन टू सपोर्ट, प्रोटेक्ट, गिव बैक टू फैमिली। वो खुद के लिए भी इतना नहीं करते, बट हमारी जनरेशन हैज अ मिक्स ऑफ बोथ कल्चर्स, जो पेरेंट्स के लिए भी करना चाहती है, बट वो खुद के लिए भी करना चाहती है। तो Correct. यहाँ पे पेरेंट्स का रोल शुड ऑल्सो भी कि हमारे जमाने में हमने अपने माँ बाप की नाक में दम किया है, माइट एज वेल लेट आवर किड्स डू दैट टू अस एंड बी मोर ओपन टू इट। That's true. That's really really true because जब तक पेरेंट्स भी खुद से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तब तक अगर हम उनको पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर कोई भी वॉक ऑफ एरिया हो उसमें वो बेस्ड ऑन देयर बिलीफ वो पॉइंट आउट देंगे,
बट अगर वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो खुद पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली दे विल गिव द मोस्ट अपडेटेड solutions करेक्ट। to the problems which we are facing. एब्सोल्युटली, ये जरूरी है। दैट्स ट्रू। एंड यहाँ पे ना, बिकॉज एनवायरनमेंट वगैरह के बारे में तो डिस्कस कर लिया, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु नॉट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली वो खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं। दे हैव सम ऑफ द सेल्फ डाउट्स कि यार क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बेस्ड ऑन वट एवर एरिया, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर वाइज और एनी अदर वॉक ऑफ लाइफ। तो उनके अंदर वो सेल्फ डाउट होता है एंड वो सेल्फ क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। सो बोथ ऑफ दीज टू टर्म्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। सो यू कैन टेक अ पॉइंट कि यार इसके जो जो ये प्रॉब्लम है, हाउ डू वी डील विद इट एंड हाउ डू वी गेट आउट ऑफ इट इन अ फ्लरिश्ड मैनर। तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं अभी आपको बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं से घूम के आ रहे हो और आप वापस जा रहे हो, मैंने कहा रास्ते में ना स्पॉट ऑल द रेड कार्स। तो यू विल ओके। स्पॉट ऑल द रेड कार्स एंड यू विल टेल मी कि मालविका मैंने 10 रेड कार्स देखी। बट अब मैं पूछूं कि तुमने ब्लू कार्स देखी, कितनी ब्लू कार्स थी, यू विल बी लाइक मैं तो रेड पे फोकस कर रहा था। करेक्ट। तो ब्लू पे फोकस करने से ब्लू दिखेंगी, रेड पे फोकस करने से रेड दिखेंगी। सो इट्स सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट इज अ हैबिट दैट यू नीड टू ब्रेक। इट्स नॉट लाइक कि कुछ बहुत ही इम्प्रूव एकदम इनग्रेन्ड कुछ घुस गया, वायरस घुस गया दिमाग के अंदर जिसने पूरे दिमाग के तार बदल दिए। इट्स नॉट रियली लाइक दैट, इट्स लाइक अ हैबिट। तो उस हैबिट को तोड़ना है। अब हैबिट को तोड़ने के कई तरीके होते हैं। सिंपलेस्ट तरीका इज रिपीटिशन। आप ओके। ब्रश इतनी बार कर चुके हो कि इट्स अ हैबिट फॉर यू। आप आंख बंद करके सोते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कभी कुछ भी करके आप ब्रश कर सकते हो। यू विल नॉट हैव टू यूज योर ब्रेन एट ऑल। ठीक है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म भी वो हैबिट बन चुकी है दैट दे आर नॉट यूजिंग देयर ब्रेन एट ऑल, और वो एकदम उनका नेचर बन चुका है टू थिंक अबाउट इट। बट अगर आपको हैबिट ब्रेक करनी है तो रिपीटिशन चाहिए होगा कि फोकस ऑन द ब्लू कार्ड्स इंस्टेड ऑफ द रेड कार्ड्स। और ये इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। जैसे अब आप सेकंड राउंड पे जाओगे ब्लू कार्ड स्पॉट करने, तो आप शायद ब्लू भी देखोगे और बाकी भी देखने की कोशिश करोगे, क्या पता मालविका बाद में मेरे से पूछ ले कि ग्रे कार्ड्स कितनी थी। ट्रू। है ना। सो इट्स ऑल अबाउट वेयर योर फोकस इज। अगर आप दिन में बस अपनी अचीवमेंट्स याद कर लो पुरानी, दैट इज इनफ टू ब्रेक योर हैबिट। एंड इफ यू कंटिन्यूसली रिपीट डूइंग दैट कि मेरी लाइफ में अच्छा क्या क्या किया है मैंने, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हाँ ये मेरी गलती थी। देखो, ब्रेन की आदत है कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको सेफ रखना चाहता है। तो ब्रेन क्या करेगा, इट विल ऑलवेज लुक फॉर थ्रेट, ताकि वो आपको सिचुएशन से बचा सके। पॉजिटिव सिचुएशन में भी नेगेटिव सोचने की कोशिश करता है तक, बिकॉज वो सॉल्व करने की कोशिश करता है टू कीप यू सेफ एट ऑल टाइम्स। कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन भी नहीं, इट्स लाइक नेचुरल इंस्टिंक्ट कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं चल रहे हो, अचानक से मोड़ पे कोई कोई डॉग आ गया या फिर कोई इंसान आ गया, वी गेट स्टार्टल्ड। करेक्ट। एक्चुअली थ्रेट नहीं है, बट वी गेट स्टार्टल्ड। तो ब्रेन इज ट्रेन्ड कि कुछ भी ऐसा हो रहा है तो इट विल रिमेम्बर इट कि फ्यूचर में ये डर ना हो, फ्यूचर में ये अनसेफ्टी वाली सिचुएशन आए ही ना। So it continuously thinks about the negative things, thinking कि you did a mistake 10 साल पहले, और 10 साल पहले ये मिस्टेक करके ये नुकसान हुआ। तो इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू इन फ्यूचर कि तुम ये मिस्टेक दोबारा ना करो, ताकि तुम्हें वो फिर से पेन ना हो। बट होता क्या है कि वो उससे ना सेल्फ इमेज डिटोरिएट हो जाती है, क्योंकि यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन रेड कार्ड्स, यू आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन बैड थिंग्स, ऑलवेज फोकस्ड ऑन मिस्टेक्स एंड फेलियर्स। बट इफ यू शिफ्ट योर फोकस टू गुड थिंग्स कि हाँ मैंने 5th क्लास में ओलंपियाड जीता था, मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, मैंने ट्रू। फुटबॉल खेला था, हमारी टीम जीती थी। सिंपल सिंपल थिंग्स, जरूरी भी नहीं है कि इससे कुछ ग्रैंड होना चाहिए कि मैंने स्कूल टॉप किया था। सिंपल थिंग कि अ, मेरे बर्थडे पे मुझे किसी ने कार्ड दिया, मेरी क्रश ने कार्ड दिया था। सिंपल, एनीथिंग दैट मेक्स यू फील कि देयर इज अ गुड आउटपुट, देयर इज अ पॉजिटिव आउटपुट, देयर इज अ कि मैंने कुछ अलग किया है। फील गुड फैक्टर वाला कुछ फीलिंग आया। तो इफ यू हम्म। कंटिन्यूसली थिंक अबाउट इट, और आप हर दिन बस करो इसको थोड़ा थोड़ा, कि हर दिन ऑब्जर्व करो कि और अच्छा क्या हुआ था, हाँ यार ये अच्छा हुआ था मेरी लाइफ में, मैं ट्रिप पे गया था कितना अच्छा था। अब मेरे दैट्स ट्रू। 10th बर्थडे पे हम लोग फन एंड फूड विलेज गए थे, कितना अच्छा था, वाटर पार्क गए थे। इफ यू कीप रिमेम्बरिंग गुड थिंग्स, योर ब्रेन विल नेचुरली गिव यू मोर टू थिंक गुड अबाउट।
True. तो टू ब्रेक दैट सेल्फ क्रिटिसिज्म, टेक इट एज अ हैबिट। कुछ गड़बड़ नहीं है आपके अंदर, आप कोई बेकार इंसान नहीं हो, आप कुछ प्रॉब्लमैटिक इंसान नहीं, इट्स जस्ट अ हैबिट। बहुत सिंपल चीज है, हैबिट। हैबिट ब्रेक करनी है। हैबिट ब्रेक करने का क्या है? रिपीट करो उसका उल्टा। अगर क्रिटिसाइज कर रहे हो तो अप्रिशिएट करो चीजें। स्टार्ट विथ 3, डू इट फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, फॉर एज मेनी डेज एज यू वांट। और फिर अगर वो सेल्फ क्रिटिसिज्म की आवाज अगर नहीं बंद होती तो फिर मेरा नाम बदल देना। That's true. That's really true. And as you mentioned before the podcast, like you transformed your body weight from 97 to what's your weight right now? Like if you're comfortable to share. हाँ हाँ, आई एम 68 और 69 probably. In how many But years? I'm very tall. I'm very tall. Okay. But still like वो transformation, because honestly बहुत सारे लोगों को 5 kgs का भी weight lose करना बहुत difficult हो जाता है, and it's just because like how they eat. Because हम्म even हमारे podcast से मैंने ये सीखा है, it's not about what you eat, it's also about how you eat. So based on their हम्म eating habits and what their mindset is all about, वो weight lose ही नहीं कर पाते हैं, and in fact बहुत सारे लोग weight gain भी नहीं कर पाते हैं. But what was your strategy and how did you transform yourself? See, like Siddharth also says कि how you do one thing is how you do everything. True. है ना? तो अगर वेट लूज नहीं हो रहा है तो आप what you do is you take things up and you don't finish it, or Okay. you do things but you don't do things thoroughly. You do things but you don't do things that work. मतलब होता है ना कि like system works, people fail. Correct. है ना? तो माई स्ट्रैटेजी वॉज कि मुझे हेल्दी होना था। आई नेवर थॉट कि वेट इज अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। आई नेवर थॉट कि मैं मोटी हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी था। हाँ, सेल्फ डाउट भी था बहुत ज्यादा, बट एक कॉन्फिडेंस भी था कि हाँ, आई थिंक आई लुक गुड इवन एज अ फैट पर्सन। आई डिड लुक गुड, मेरे चेहरे पे तब भी ग्लो होता था। आई वुड स्टिल गेट कॉम्प्लीमेंट्स, बट मेरे को पता था कि मेरी हेल्थ खराब हो रही है। अंदर बॉडी में गड़बड़ शुरू हो चुकी है। मुझे वो स्ट्रेंथ चाहिए थी, मुझे वो एंड्योरेंस चाहिए था। दैट वाज माय भूख। और मुझे वो क्यों चाहिए था? क्योंकि मुझे पता है कि दैट विल मेक मी अ स्टेबल पर्सन। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मोटी हूँ तो मेरी ईटिंग हैबिट्स खराब है बहुत ज्यादा। ईटिंग हैबिट्स क्यों खराब है? क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी खाती हूँ और मैं फीलिंग के हिसाब से चलती हूँ। मेरे इमोशंस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, इसीलिए मैं खा रही हूँ। नहीं तो अच्छा. अगर कोई माइंडफुली खाएगा तो वो तब खाएगा जब उसको भूख लगती है, या फिर तब खाएगा जब उसको एनर्जी नहीं मिलती। उसको एनर्जी चाहिए। बट बाकी टाइम्स हम बोरियत में खाते हैं, हम स्ट्रेस में खाते हैं, हमारे साथ कोई बैठ के खा रहा है तो हम खाते हैं, हमारी कोई क्रेविंग है तो हम खाते हैं, हमें कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम खाते हैं। तो बेसिकली रूट प्रॉब्लम इज इमोशन, अ फीलिंग। यू आर ईटिंग बिकॉज ऑफ अ फीलिंग। बट इफ यू अंडरस्टैंड कि न्यूट्रिशन के लिए खाना है, इफ यू अंडरस्टैंड कि स्टार्व नहीं करूं इसलिए खाना है, तो वेट बढ़ेगा नहीं। आप हेल्दी वेट लूज करोगे इफ यू स्टार्ट फंक्शनिंग एज दैट पर्सन। बट टिल द टाइम योर इमोशंस आर नॉट इन चेक, आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेट लॉस हो सकता है। बिकॉज आई True. ऑल्सो सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन माई फैमिली जो बहुत खाते थे, मोटे थे, उन्होंने लूज किया है मेहनत करके, बट उन्होंने फिर से वो वापस मेंटेन कर लिया दोबारा। तो इट्स लाइक हाँ, उन्होंने आउट ऑफ विल पावर किया है। 10 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया, 3 महीने कर लिया, बट दे हैव स्टिल गिवन अ फीलिंग। जब वो फीलिंग गंदी वाली आई जिसके लिए वो खाते थे, वो फीलिंग तो वहीं थी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो फीलिंग कब स्ट्रांग होनी थी और आपने फिर से पेट भर के खाना था, भर भर के। सो True. द वर्किंग ऑन द फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाट आई स्टार्टेड विद। मैंने उस फीलिंग को आइडेंटिफाई किया कि मैं क्यों खा रही हूँ ऊटपटांग, मैं क्यों खा रही हूँ, इमोशनल ईटिंग क्यों हो रही है मेरी, व्हाई इज माई रिलेशनशिप विद फूड इज सो बैड। एंड देयर केम अ पॉइंट कि मैं कम खा रही थी, मैं फिर भी मोटी हो रही थी। तो Okay. मेरी बॉडी वो पैटर्न सीख चुकी थी कि इसको मोटा करना है, इसको फीलिंग अच्छी देनी है, ये कम भी खाएगी। तो अब वो सीख चुकी, खाओ बढ़ो, खाओ बढ़ो, खाओ बढ़ो। तो वो इमोशन के साथ लिंक हो गया कि अब मालिका जब भी गंदा फील करेगी, उसको लगेगा कि शी इज नॉट गुड इनफ, उसका वेट बढ़ा दो। ब्रेन ऐसे सीख लेता है, न्यूरल पाथवेज होते हैं अंदर, तो Correct. वो पाथवे बन जाता है रिपीटेशन से। तो लिंक हो जाती हैं चीजें अनइंटेंशनली भी, कि वो फीलिंग ही इज इनफ टू मेक मी फैट नाउ, फूड इज नॉट इवन ऑप्शन।
जंक फूड इज नॉट इवन अ सोर्स जिससे मैं मोटी होंगी, बट अगर वो फीलिंग आ गई, माई बॉडी विल स्टार्ट स्टोरिंग फैट एज अ वे टू प्रोटेक्ट, एज अ वे टू मेक मी फील वार्म. मतलब आई थोड़ा टेक्निकल हो गया है, बट इट हैपेंस लाइक दैट एज वेल. तो True, that's मेरा true. चेंज इसलिए हुआ क्योंकि आई अंडरस्टूड द फीलिंग, आई वर्कड ऑन द फीलिंग, मैंने उस चीज की हीलिंग वीलिंग की, मैंने अपनी इनसिक्योरिटीज पे काम किया, एंड प्लस आई इन्वेस्टेड माई टाइम इनटू रिसर्चिंग कि व्हाट एक्चुअली वर्क्स. मैंने कोई भी रैंडम वो नहीं किया कि जैसे बोलते हैं ना कि आप खाना छोड़ दो या फिर आप वॉक कर लिया करो. मैंने प्रॉपर तरीके से रिसर्च कर, मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ. आई डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन अ ट्रेनर, आई डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट. तो मैंने टाइम इन्वेस्ट किया अपना सीखने में. अगर मैं आज बनूं तो मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेनर भी बन सकती हूँ किसी की, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली थी इस बारे में. बट आई स्टार्टेड डूइंग व्हाट वर्क्स. मैंने घर का Correct. खाना खाया, मैंने जंक छोड़ा, मैंने घर पे ही वर्कआउट करना स्टार्ट किया जिस भी तरीके से मैं कर सकती थी. मैंने एक ऑनलाइन छोटा सा वीडियो कोर्स भी, डांस मुझे पसंद है तो मैंने वो शुरू किया था. एंड इट मेड इट इजी. और मुझे पता था कि मैं स्ट्रेंथ के लिए कर रही हूँ, मुझे पता था मैं फीलिंग पे काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए डिसिप्लिन रखना आसान था. मेरे वो दिन कम थे कि जहाँ पे वो जो फीलिंग है दैट ओवर पावर्ड एंड मेड मी ईट, दैट ओवर पावर्ड और मेड मी से कि आज मैं वर्कआउट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं फीलिंग पे काम कर रही थी. तो फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू डू दैट, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझो कि why are you overweight, why are you eating too much, why are you not moving enough. यूजुअली निकलता है कि आई फील डिप्रेस्ड, आई फील सैड, आई फील हर्ट, मेरे को अच्छा फील नहीं होता है. बेसिक्स में सबसे मुझे अच्छा फील नहीं होता है. तो यू हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग वेज कि आपको हर रोज अच्छा फील हो. True, अगर आपको हर रोज अच्छा फील हो रहा है, आप नेचुरली सब कुछ अच्छा करोगे खुद के लिए. that's That's true. just how your relationship with everything is. Like I said before कि our relationship with us, रिलेशनशिप तो फीलिंग से बनता है ना, तो हमारी फीलिंग हमारी खुद के लिए विल मेक डिसीजंस कि हमारा रिलेशनशिप हर दूसरी चीज के साथ कैसा होगा. इफ योर रिलेशनशिप विद योर बॉडी इज बैड, इट्स बिकॉज कि आपका रिलेशनशिप जो फीलिंग है खुद के साथ वाली, दैट इज बैड. यू डोंट फील लव्ड टुवर्ड्स योरसेल्फ. That's तो so आई deep. वुड से फीलिंग पे बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Like a lot of people, a lot of coaches also say, what is your why? That why is emotion only. That why is a feeling only. It comes from heart. You have to Correct. find your why even to lose weight. अब you must have noticed कि शादियों पे कितनी जल्दी ब्राइड्स अपना वेट लूज कर लेती हैं. True. बिकॉज देयर वाई इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि मुझे शादी की पिक्चर में पतला लगना है, मुझे अच्छा लगना है, मुझे खराब नहीं लगना, क्योंकि दिस इज लाइक बन जाएगी. अब मैं 20 साल बाद भी देखूंगी तो मुझे अच्छा लगना चाहिए. तो देयर Correct. मोटिवेशन ऑफ दैट वाई इज वेरी स्ट्रॉन्ग. So they allow them to be more disciplined. They allow them to work out. So the why is the secret to everything in life. That's true. And ये point इनफैक्ट मुझे भी बहुत लाइक बहुत अच्छे से समझ में आया. इनफैक्ट आई ऑल्सो used to have that negative feeling because 2 to 3 years back I was working out to gain weight and तब जब मैंने वर्कआउट किया nothing changed and जो भी changes हुए थे that was for a very smaller period of time and Hmm. then I worked only on feeling and without even working out. अगर मैं खुद के खाने पे ध्यान दे रहा हूँ, खुद के डेली प्रैक्टिसेस पे ध्यान दे रहा हूँ, स्लीपिंग हैबिट्स एंड सो ऑन, अल्टीमेटली आई एम गेनिंग दैट वेट व्हाट आई एक्चुअली Exactly. वाज एस्पायरिंग फॉर व्हाइल वर्किंग आउट. बट वो नहीं हुआ एंड राइट नाउ इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑन द फीलिंग्स. सो थैंक यू सो मच फॉर पॉइंटिंग दैट आउट बिकॉज मुझे भी वो अवेयरनेस नहीं थी कि यार ये फीलिंग्स की वजह से हो रहा है. बट आई थॉट कि यार ये Hmm. हो रहा है जो भी लाइक देर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस एज वेल जो कि मैं फॉलो करता हूँ. बट आई थॉट कि यार Hmm. अगर ये इन सब चीजों की वजह से हो रहा है या किसी एक चीज की वजह से भी हो रहा है, still I need to continue that because I'm feeling good after doing that as well. Hmm. So I think That's true. that's a really good point to work on the feelings. And are there any feelings like जैसे हमने self doubt and self criticism के बारे में discussion किया, so are there any other negative feelings जो कि बहुत hamper करते हैं on our own personal development journey? Uh, गुस्सा बहुत करता है. गुस्सा इज Okay. द रूट. सिंस मैं हीलिंग भी करती हूँ तो डिजीजेस पे भी काम करती हूँ, Mm-hmm. क्रॉनिक डिजीजेस. तो सबके अंदर जितना भी हील करते हैं हम, इमोशनल रीजन निकलता है, रूट कॉज. तो
गुस्सा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन जो हम सब अपने अंदर दबा के रखते हैं, क्योंकि सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो, ट्रू। गुस्सा बोलो। ऑफ कोर्स क्योंकि नुकसान होता है, बट एक सही तरीका भी है गुस्सा रिलीज करने का। लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं, लोगों को पता नहीं है, पीपल आर नॉट एज अवेयर अबाउट इट, तो पीपल सप्रेस इट। तो सप्रेस करके क्या होता है, भर जाता है अंदर। करेक्ट। तो गुस्सा इज वन इमोशन दैट ड्राइव्स यू इनटू मेकिंग माइंडलेस डिसीजंस एंड माइंडलेस परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड। तो एंगर से क्या होता है कि लाइक आई वाज सेइंग कि इफ आई एम एंग्री एट यू, तो आई एम नॉट genuinely present here in a way ki I want to connect with you. I want to give value to this relationship that we are having right now in this conversation. तो एक होता है ना कि हम फुली प्रेजेंट नहीं होते हैं और हम रिजेंट करने लगते हैं सामने वाले इंसान को। तो एंगर इज वन थिंग जिससे हमारे बहुत सारे डिसीजंस ना हम पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से लेने लगते हैं। लाइक इफ आई मीट समबडी कॉल्ड साहिल, और फॉर एग्जाम्पल हमारा रिलेशनशिप इज वेरी बैड, my association with Sahil is already कि साहिल, वो साहिल, आई डोंट लाइक दैट साहिल। तो मैं नेचुरली इस नए साहिल को अलग ट्रीट करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा है एक साहिल के लिए। जस्ट बिकॉज उस इंसान का नाम साहिल है, वो मेरे को उस गुस्से के बारे में रिमाइंड कराता है, उस एक्सपीरियंस के बारे में रिमाइंड कराता है। सो आई एम ऑलरेडी नॉट वैल्यूइंग दिस न्यू साहिल हु कुड बी अ वेरी contributing factor in my life. ट्रू। तो एंगर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल कि वो हमारे डिसीजंस इम्पेयर कर देता है, हमें एक्यूरेटली चीजें परसीव नहीं करने देता, हमें करेक्टली चीजें एक्सप्रेस नहीं करने देता, एंड वी मेक पुअर डिसीजंस एट टाइम्स। लाइक फॉर ट्रू। एग्जांपल, if आई एम एंग्री एट अ बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल, और मुझे पता है कि इफ आई कनेक्ट विद हिम ऑन अ जेन्युइन लेवल, इफ यू एक्चुअली वर्क ऑन दैट थिंग, तो हो सकता है वी कुड बी डूइंग समथिंग एक्सपोनेंशियली टुगेदर। ट्रू। तो इट्स लाइक मैं खुद की ग्रोथ रोक रही हूँ, मैं उसकी ग्रोथ रोक रही हूँ। आई एम वेस्टिंग माई टाइम एंड एनर्जी फोकसिंग ऑन दैट एंगर एंड रिजेंटमेंट, जहाँ की मैं कुछ और पे फोकस कर सकती हूँ, विच कैन बी इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ, माई लाइफ, माई फैमिलीज लाइफ, एवरीबडीज लाइफ। तो करेक्ट। एंगर इज समथिंग एवरीबडी शुड वर्क ऑन, क्योंकि इससे वो हमारी थिंकिंग, वो जो होती है ना, रैशनल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट करती है। हम हम ऑनेस्टली फंक्शन ही नहीं कर रहे होते हैं व्हेन देयर इज एंगर अंदर भी, इवन इफ सरफेस लेवल पे एंगर नहीं होता है, बट फिर भी कुछ सबकॉन्शियसली हम चीजें कर रहे होते हैं जो आउट ऑफ एंगर कि ये नहीं करना, जबकि मैं कर करेक्ट। सकती हूँ बट फिर भी नहीं करना। मेरा ही नुकसान हो रहा होगा बट फिर भी नहीं करना, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ जो भी। तो एंगर एक इमोशन है विच इज द रूट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, अपने लिए ग्रोथ चूज ना करना। सेल्फ क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो एंगर। अगर आप सेल्फ क्रिटिसिज्म के बारे में सोचो, आपके पास सेल्फ क्रिटिसिज्म कहाँ से आया होगा, किसी एक्सपीरियंस से आया होगा जहाँ पे आपने कुछ किया, या तो किसी ने आपको बोला कि आपने गलत किया, या फिर आपने परसीव किया कि आपने गलत किया। अब आप खुद पे गुस्सा हो क्योंकि तो आपने गलत किया, आप दूसरे इंसान पे गुस्सा हो कि वो मुझे गलत बता रहा है, तो गुस्सा इज स्टिल अ फैक्टर उसमें। बट अगर आप वहां से गुस्से को रिजॉल्व कर दो, गुस्से को डिसअपियर कर दो, तो नाउ यू नो कि अच्छा मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, नेक्स्ट टाइम आई विल डू दिस इंस्टेड ऑफ दैट। और मैं सामने वाले पे भी गुस्सा नहीं करूंगी, मतलब गुस्से का परसेप्शन नहीं होगा, एक व्यू नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा। तो करेक्ट। नेचुरली आई एम प्रोवाइडिंग फॉर माई सेल्फ a better environment, better quality of living, better quality of decision, ultimately impacting my whole life and everybody else's too. दैट्स ट्रू। But बट आपने यही आंसर के वक्त, इवन इन द इनिशियल फेज एज यू मेंशन कि गुस्सा सबको आता है, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ रीजंस, बट वो गुस्से को कन्वे कैसे करना है, दैट मेक्स अ बिगर डिफरेंस। सो हाउ डू वी कन्वे दैट? सबसे पहले उसको सप्रेस मत करो, हम्म। चुप मत रहो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ बोलने से आपका सामने वाले इंसान के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है, हाँ तो उनको मत बोलो, ओके। बट यू नीड टू फोकस ऑन योर एक्सप्रेशन। आप लिख दो कहीं पे, लेट इट आउट। आप कोई वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लो, जस्ट टू गेट इट आउट कि हाँ ये हुआ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। इफ व्हेन द मोमेंट यू एक्नॉलेज योर फीलिंग्स, द मोमेंट यू अलाउ योरसेल्फ टू फ्लो विद द एंगर कि हाँ दिस इज व्हाट आई एम, द मोर इजी विल इट फॉर यू टू बी कि वो रिलीज हो जाए,
यू अलाउ इट टू फ्लो, इट्स लाइक इट कम्स एंड फ्लोज। बट अगर आपने सप्रेस कर दिया, यू आर होल्डिंग इट। करेक्ट। आप उसको अपना एक प्रेशियस ट्रेजर में डाल रहे हो। बट इफ यू आया गुस्सा, आप उसको रिलीज कर रहे हो एक्सप्रेस करके, अक्नॉलेज करके, उसको स्पेस देके कि हाँ दिस सिचुएशन हैज ब्रॉट अप एंगर फ्रॉम यू। अब अक्नॉलेज योर फीलिंग्स कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्यों आ रहा है, डा 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 डा, मुझे इसलिए आ रहा है। अब एक्सप्रेस करने के वेज कुड बी राइटिंग, कुड बी मेकिंग अ वॉइस नोट एंड डिलीटिंग इट लेटर। जरूरी नहीं है हर बार दूसरे इंसान को बोलना इज द सोल्यूशन। इट्स करेक्ट। नेवर नेसेसरी कि वो करना जरूरी है। अब एंगर इज अ लॉट ऑफ, एक और एस्पेक्ट है कि एंगर इज एनर्जी। आपने देखा ट्रू। होगा कि हेवी लिफ्टिंग में, रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, एंगर एग्रेशन प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल इन ब्रिंगिंग दैट पंच। करेक्ट। एंगर इज एनर्जी। जब तक वो रिलीज नहीं होगी किसी फॉर्म ऑफ मूवमेंट में, आपकी बॉडी होल्ड करेगी उसको। एक ओके। होता है इमोशनल रिलीज, हो सकता है एनर्जी रिलीज। तो बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे पीपल स्क्रीम इन अ पिलो, पीपल लेट इट ओके। आउट, पीपल गो टू अ secluded place and just scream, they let it out. I know थोड़ा क्रेजी साउंड कर रहा है, बट that tension needs to be released, that tension needs to be released. A lot of people get into boxing कि निकले निकले मेरा मेरा गुस्सा। आजकल तो वो सारे प्लेग्राउंड्स भी आ गए हैं, पीपल आर ब्रेकिंग स्टफ, ट्रू। देखा है मैंने है भी। ना। पीपल थिंक ऑफ इट कि यार इसकी अरे क्या मेंटालिटी बना दी है, ये क्यों बना दी, बट इफ यू हैव टू थिंक ऑफ इट, इट्स अ वेरी गुड वे टू रिलीज एंगर। अगर आप अभी हाँ रिलीज कर दोगे, किसी और सिचुएशन में आप गलती से किसी की पिटाई कर दोगे उस एनर्जी में। करेक्ट। क्योंकि a lot of people actually start fighting, थप्पड़ मार देते हैं गलती से किसी को गुस्से में। ट्रू। That is also energy only. So if you release it in a way that is not harmful to you, to people, very good. इससे वो प्रिवेंशन हट रहा है, जहाँ पे एक्चुअली आप गुस्से में लड़ दे रहे हो। कई बार रिलेशनशिप्स में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा देते हैं, दोस्त एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा देते हैं। तो दैट पेंट अप एनर्जी ऑफ एंगर ही रिलीज हो रही होती है उस वक्त। तो ट्रू। to avoid that, you can punch a pillow, you can dance, you can shake, you can not break your home things, but you can go to that kind of field and you can do that. You can boxing सीख सकते हो, वेट लिफ्टिंग में निकाल सकते हो, बहुत तरीके हैं, बट मूवमेंट के थ्रू ही निकलेगा वो एंगर। करेक्ट। एंड आई फील लाइक देर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे, लाइक एज यू मेंशन इन द प्रीवियस आंसर, कि जब भी हमें गुस्सा आता है, rather than thinking from a logical brain, we think emotionally. So that is why, हम्म like as you mentioned about the two practices, audio note के through and even through writing, like journaling, these हम्म are the two हम्म practices जो मैं खुद follow करता हूँ whenever I do get angry about anything. So that हम्म helps me to take like logical decisions at any instance of time. Sometimes emotional ho jata hai, but again, we are not perfect, so I'm also uh, giving my best at that particular instance of time. And that's the overall हम्म thing. Any other practices which we need to follow ताकि हमारा जो anger है वो deviate हो जाए, ताकि हम लोग जिसके साथ भी relationship है, like whatever it is all about, friendship, relationship, in a marriage or with our kids, तो वो गुस्सा उन पे ना निकले. Any other practices to follow, or is this the blueprint? another thing that can help is talking, communication. बट अब Okay. बात यह है कि communication should be in a way that will give you results. It can, Mm-hmm. it shouldn't become a fight कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने मेरे साथ ये किया, नहीं मैंने ये नहीं किया। पीपल अपनी स्टोरीज में ही फंस जाते हैं कि तुमने ये किया, Okay. नहीं मैंने ये नहीं किया, तुमने ये किया, मैंने नहीं किया। एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स राइट कि आई एम द विक्टिम, यू वर हु द वन जिसने मेरे साथ गलत किया। बट whenever you get angry, whenever you have something that is hurting you, it has to come from a place that you are expressing yourself without including anybody else in the picture. It's like अगर आप और मैं हमारे बीच झगड़ा हो, तो मैं बोलूंगी कि साहिल यार आपने जो ये बोला था ना स्टेटमेंट, इससे मुझे ना हर्ट फील हुआ है। मुझे लग रहा Mm-hmm. है कि फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को बोला कि मालविका योर हेयर इज लुकिंग पैथेटिक। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपने मेरे हेयर के बारे में कॉम्प्लीमेंट किया, मैं कॉन्शियस फील कर रही हूँ। अगर Mm-hmm. मैं आपको बताऊंगी ये, यू विल टेक इट एज अ पॉजिटिव थिंग कि अच्छा मालविका इज कॉन्शियस अबाउट हर हेयर, तो शायद मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, तो मैं मालविका को हर्ट नहीं करूंगा। दिस इज वन वे। नाउ सेकंड वे इज कि तेरे बाल खराब लग रहे हैं, या फिर तूने मुझे क्यों बोला कि मेरे बाल खराब लगे, मैं बताऊं तुझे, खुद को देख ले, ये सब भी होता है।
So you have to Correct. understand from a place ki in a conversation where you're trying to solve a fight, where you're trying to improve your relationship, you have to come from a place ki I am feeling this dash, and you fill that blank. Instead of saying you did this to me, you have to make it about yourself when you're communicating about your problems, your hurt, your anger. क्योंकि जब आप अपने बारे में बताते हो ना, लोग खुद को डिटैच कर लेते हैं फ्रॉम फोकस ऑन कि आपको इस वक्त बुरा लग रहा है, तो आई विल ट्राई टू कंफर्ट यू, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार ये मेरे को क्यों ब्लेम कर रही है. तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग मेकिंग दैट अदर पर्सन फील अटैक्ड, आप सिर्फ अपने बारे में, इमोशंस के बारे में बात करो कि दिस इज व्हाट हैपेंड, मुझे बुरा लग रहा है. जब आप रिप्लाई नहीं, रिलेशनशिप में यूजुअली क्या होता है कि आप रिप्लाई नहीं करते टाइम पे, आप मुझे टाइम नहीं देते. पीपल से यू डोंट गिव मी टाइम, यू डोंट वैल्यू मी, यू डोंट टेक मी आउट फॉर मूवीज, यू डोंट बाय मी गिफ्ट्स. सिंपल है, इस सिचुएशन में आप बोल सकते हो कि आई मिस यू, आई मिस स्पेंडिंग टाइम विद यू, आई मिस True. गोइंग आउट फॉर मूवीज विद यू, आई मिस True. स्पेंडिंग दोज क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस विद यू. मुझे अच्छा लगता है जब आप हम लोग खाना खाने जाते हैं, हम लोग चाट खाने जाते हैं. ये दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्पेस. सामने वाला दिल से करेगा यार फिर अगले दिन कि को True. करना That's really चाहेगा. true. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, बट यू हैव टू लर्न टू कम्युनिकेट. ये True. ऐसा नहीं है कि सबको आता है, मुझे भी आता नहीं था. मेरे को, मैंने इसे सीखा भी नहीं है, बट मेरा एक्सपोजर इतना रहा है लाइफ में सिचुएशंस में खराब कि आई हैड टू लर्न इट. And it's like a क्योंकि two-way thing. हाँ, एब्सोल्युटली. Like कि हम जो हम्म, सही बात भी कर रहे हैं तो सामने वाले का परसेप्शन क्या है, that also matters the most. हाँ, बट इट्स द पर्सन हु इज ट्राइंग टू कन्वे समथिंग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस तरीके से कन्वे करे कि सामने वाला काफी एक्यूरेटली परसीव कर सके. Correct. That's really true. आपको उस भाषा में बोलना है कि सामने वाले को समझ आए. आपको उस भाषा में नहीं बोलना जो आपके लिए कंफर्टेबल है. True. तभी इट्स लाइक टू पीपल आर टॉकिंग, एक फ्रेंच में बात कर रहा है, एक स्पेनिश में बात कर रहा है, बट आप जब बोल रहे हो वो तब तक दूसरे तक तब पहुंचेगा जब उसको भी आती होगी आपकी लैंग्वेज, Correct. या फिर आप उसकी लैंग्वेज में बात करो. Correct. तो कम्युनिकेशन हैज टू बी लर्नड, एंड इन अ वे कि यू हैव टू मेक योर सेल्फ कि वो मैसेज चला जाए यार सामने वाले के पास, और ऐसे फ्लो से जाए कि वो ग्रास्प कर ले विदाउट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन की ये क्या बोल दिया इसने. इट हैज टू बी That's really सिंपल, true. स्वीट, एंड एब्सोल्युटली ऑर्डिनरी. इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना बन गया है. That's really true. And this is the point where we will shift the gears of our podcast. And pehle, I would like to ask you some of the book recommendations in terms of personal development या फिर emotions के ऊपर, जैसे हमने discussion किया है, like how do we manage our anger and few other emotions as well. So are there any books which you would like to recommend to me and to our audience ताकि वो लोग personal development journey पे, like they can start from basics till the advanced, and also about emotions. ऑनेस्टली बताऊं तो आई एम नॉट रियली अ बुक पर्सन. मुझे Okay. बुक्स पढ़ना इतना नहीं पसंद. Any मुझे बुक्स podcast पढ़ or any movies or anything like जहाँ से आपने सीखा है या फिर आपने inspiration लिया to work on yourself. या मैंने ना प्रॉपर कोर्सेज, ट्रेनिंग्स, ये सब ज्यादा लिया है. सो आई एम लाइक Okay. एक्चुअली एजुकेटेड इन दैट वे कि मतलब आई हैव गॉन थ्रू द डिस्कम्फर्ट ऑफ एक्चुअली प्रिपेयरिंग, लाइक स्टडिंग. व्हेन इट हाँ. कम्स टू स्टडी मैंने वो बुक्स पढ़ी है. तो जैसे आई स्टेड कि मैंने प्राणिक हीलिंग की काफी सारी बुक्स पढ़ी है, बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज कि फर्स्ट लेवल कोर्स में आपको पहली बुक है, सेकंड बुक है, थर्ड बुक है. एक नॉर्मल डिजीज काम करती है, एडवांस डिजीजेस के ऊपर बेस्ड है, एक साइकोलॉजिकल इमोशनल डिजीजेस, सिचुएशंस, कंडीशंस पे बेस्ड है. सो आई एम मोर इनटू दैट. हाँ, मैंने लेटली बुक्स पढ़ी है, जैसे मतलब सिंस आई एम डेवलपिंग दैट हैबिट ऑफ रीडिंग एज वेल, क्योंकि आई नो कि अगर मैं दैट टाइम अवॉइडिंग तो माई ग्रोथ लाइज इन रीडिंग बुक्स. सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट एज वेल. तो जैसे मैंने पढ़ी है लुइस हे की यू कैन हील योर लाइफ. दैट इज अ वेरी Okay. गुड बुक Mm-hmm. for emotions, for relationship, for patterns, for beliefs, for diseases. सबके लिए it's like a wholesome book. Anybody who reads it and also implements it, उसकी life बदलेगी. Okay. It's a very simple book. Then what else have I read? Autobiography of a Yogi is very good On my in bucket terms list of to read. that is there. And
आई बुक्स नहीं पता, बट आई नो सम ऑथर्स जिनका काम मुझे पता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई लाइक जे शेट्टी। मुझे उसकी करेक्ट. उसकी फिलोसफीज अच्छी लगती हैं। आई कैन रिलेट टू हिज फिलोसफीज, आई कैन रेजोनेट विद हिज फिलोसफीज। देन डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक्स आर वेरी 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 पावरफुल, सुपरनैचुरल, दैट एंड और भी हैं, आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग द नेम। प्लेसिबो इफेक्ट वाला समथिंग है एक. प्लेसिबो इफेक्ट। सो इट्स लाइक anything that challenges your reality, present reality, read it. like लग रहा है कि you don't believe in it, कि क्या लिखा है इसके समरी पेज पे, if you think बकवास लिखा है, that is the book you should definitely read. करेक्ट, करेक्ट. लाइक वो चैलेंज मिल जाता है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स एंड अल्टीमेटली वो चैलेंज कंप्लीट करते करते वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है. हाँ, it's like if you're an introvert, your growth lies in being an extrovert. If you करेक्ट, like to lazy around, your growth lies in moving. तो इट्स लाइक कि जो आपको लग रहा है कि बकवास है, आप उसको एक्सप्लोर करो कि वो बकवास क्यों है, और आपको रीजन मिल जाएगा कि वो क्यों काम करता है। करेक्ट. दैट्स करेक्ट. दैट्स रियली ट्रू. एंड बाकी आई थिंक इंस्टेड ऑफ जस्ट हीलिंग रिलेटेड एंड सेल्फ बिलीफ रिलेटेड, अगर आप बिजनेसमैन की भी बुक पढ़ोगे ना, लाइक ऑटोबायोग्राफीज, या फिर कोई सक्सेसफुल इंसान की भी पढ़ोगे ना, every successful person in this world has gone through that personal development naturally. वो ट्रू. part and parcel of the मतलब उसका part है वो एक बहुत important. They are करेक्ट, there because they changed their version 1 from version 10. करेक्ट. तो आप किसी की भी बुक पढ़ोगे ना जिसने कुछ अचीव किया है, आपको बहुत मिल जाएगा लाइफ में। एंड जरूरी नहीं है आपके लिए बुक नंबर 1 में ही मिले, हो सकता है बुक नंबर 7 में आपके लिए बेस्ट चीज मिले, विच वर्क्स फॉर यू। क्योंकि इट्स बोलते हैं ना कि वन शू डजंट फिट ऑल। करेक्ट. तो इट्स लाइक दैट कि यू हैव टू कंटिन्यू टू एक्सप्लोर, यू हैव टू कंटिन्यू टू एक्सपोज योरसेल्फ टू न्यू थिंग्स। तो मैं बुक्स से ज्यादा मैं आई सर्च वट एवर कम्स टू माई माइंड ऑन ओके. यूट्यूब या फिर ऑन गूगल, एंड देन आई लुक एट इट कि क्या ब्रांचेस खुल रही है मेरे लिए, एंड देन जिससे मैं सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ मैं उसको एक्सप्लोर करने लगती दैट्स अ हूँ। गुड दिस आइडिया. इज माई अप्रोच। आई मेरे को बुक पढ़ने की इतनी आदत नहीं है, बट आई लाइक टू लिसन टू थिंग्स, आई लाइक टू वॉच थिंग्स। मेरे लिए बुक बहुत स्टैटिक है, आई गेट करेक्ट. bored or I get distracted. This is my perception of it. A lot of people like that static thing. मेरे लिए काम नहीं करता because I'm a audio person. So I like to listen to podcasts. I like to listen to, जैसे मैंने बोला कि I like few people. I like Gaur Gopal Das. I like Jay Shetty. I like Mel Robbins. I like there's the guy called Julian Blanc. तो ओके. बहुत सारे हैं जिनको मैं सुनना पसंद करती हूँ, और मुझे उसमें से कुछ क्लिक कर जाता है हमेशा। लाइक इट्स लाइक आई एम ऑलरेडी अवेयर ऑफ समथिंग, बट दे से समथिंग, आई एम लाइक कि ओह हाँ मेक सेंस। अब वो लॉजिकली मेरे पाथ में आ जाता है कि व्हेन देयर इज अ लॉजिक टू इट, इट्स वेरी इजी फॉर मी टू रिमेम्बर एंड इम्प्लीमेंट। That's true. And that's a good idea in itself because even what I do is like book reading is like a part of my life. And जो कोई भी in fact as you mentioned कि like it's not कि like जो हम 10 बुक्स पढ़ने वाले हैं उसमें से पहली बुक में ही हमें आंसर मिल जाएगा. In fact I have read couple of books. I won't expose the name here but जो कि पर्सनल डेवलपमेंट में हर कोई बोलता है कि यार यू शुड रीड दिस बुक, रीड 1 2 3. मुझे वो बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं है. लाइक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड मुझे बिल्कुल सब कुछ समझ में आया बट मुझे लगा कि यार दिस इज समथिंग विच आई कांट रेजोनेट विथ. मेरी लाइफ में ऑलरेडी या तो हो चुका है या फिर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है अभी, सो आई शुड मूव ऑन फ्रॉम दैट. सो आई फील दैट्स अ गुड आइडिया कि जो कोई भी चीज हमें सीखनी है यू कैन गो थ्रू ऑडियो बुक्स, यू कैन गो थ्रू पॉडकास्ट और यू कैन सर्च आउट फॉर इट. बिकॉज अगर हम सर्च भी करते हैं तो इट्स लाइक कोई रिसर्च पेपर आता है, कोई लेट्स अज्यूम कोई बुक आ जाती है, तो बहुत सारे करेक्ट। ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास आ जाते हैं एंड देन हम लोग कनेक्ट करने लग जाते हैं कि लाइक दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट या फिर ये मैं करंट सिचुएशन मेरा ये है, सो दिस इज हाउ आई कैन रिजॉल्व. सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट आउट. And last 2 points which I wanted to discuss. First is with respect to myth and fact round. There are 5 myths which I have taken out, like 5 statements. अगर वो myth है तो you can convert it into fact, और अगर वो fact है तो you can even give it like more points on it कि यार ये fact क्यों है, like as your logical brain says. So shall we begin with it? यस यस। Perfect. So
like as this podcast is based on self love, so the first statement is that self love is selfish. It's not. Self love is not selfish. Self love is you. It's like you. आप self centered बोल सकते हो. Mm-hmm. सेल्फिश नहीं बोल सकते. सेल्फिश कम्स फ्रॉम अ प्लेस आप दूसरे लोगों का इंटेंट रख रहे हो नुकसान करने का. दैट इज सेल्फिश. लाइक Okay. Mm-hmm. दैट कम्स अंडर सेल्फिश. सेल्फ सेंटर्ड इज कि मैं अपने आप को स्ट्रांग करूंगी तभी तो मैं दूसरों को दे पाऊंगी. अगर Correct. मैं ही खुद का ध्यान नहीं रख रही हूँ, मेरी हेल्थ खराब है, मेरा करियर खराब है, मेरे फाइनेंसेस खराब है, मेरे खुद का कॉन्फिडेंस खराब है, हाउ विल आई सपोर्ट माई फैमिली? हाउ विल आई शो अप एज अ person, show up as a colleague at my office? How will I show up as a mother in future? How will I show up as the person to anybody who I talk to? That's Selfish true. is like मैं इंटेंट ही रख रही हूँ यार कि इसका खराब हो जाए. That is selfish. Self love is pure. That's true. So which means it's a myth, and Yeah, you have yeah, given the fact to that as well. Second statement is that self love means you're always being in the zone of solitude, like you're always being happy with yourself only. see, self love is more self acceptance than feeling good all the time. Okay. So this is a myth. क्योंकि सेल्फ लव में आपको ये भी लगेगा कि हाँ आई एम फीलिंग सैड एंड यू गिव योर सैडनेस अ स्पेस इन योर लाइफ कि हाँ आई एम फीलिंग सैड, इट्स ओके टू फील सैड. बट अगर आप ये कर दो कि नहीं मुझे सैड नहीं होना, मुझे मुझे हमेशा हैप्पी रहना है, तो देन यू आर ऑलरेडी ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ लिव इन अ वे दैट यू आर नॉट इवन दैट. It's not in alignment with who you are. Your emotions are a part of you. Your emotions, your thoughts are a part of you. आप जितना उनको रिजेक्ट करोगे, it's like you are rejecting yourself. तो सेल्फ लव और कम होगा. Correct. Nobody can be happy at all times. अगर if that is possible, तो हम इस पृथ्वी पे नहीं होते, हम कहीं Correct. और होते. Correct. So That's that's a really myth true. again. That's really true. The third statement is that in self love, we can also treat ourselves in a negative manner. I would need more context on this. मतलब Okay. क्या है? मैं मतलब नहीं समझी पूरा. इट्स लाइक जैसे बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार सेल्फ लव में लोग सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं खुद के साथ. सो डज दैट आल्सो इन्वॉल्व नेगेटिव थिंग्स? See, like I said, self love is self acceptance. तो आपको पता करेक्ट. होगा कि वीकनेस क्या है. अगर आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस है, हम्म. तो अगर आप वीकनेस को एक नेगेटिव नाम देना चाहते हो तो आप उसको नेगेटिवली ही एसोसिएट करो. नेगेटिव चीज को आप करेक्ट. एक हेल्दी वे में नहीं ले पाओगे. बट करेक्ट. आप करेक्ट. वीकनेस को एक फैक्ट की तरह ट्रीट करोगे. दिस इज द फैक्ट दैट आई एम नॉट एज गुड एज आई एम इन क्रिकेट, बट आई एम नॉट एज गुड इन बैडमिंटन. इट इज अ फैक्ट. अब इसको ट्रू. मैंने अगर नेगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंशिएट कर दिया, दैट विल हैम्पर माई कनेक्शन विद माई सेल्फ. बट अगर मैं उसको एज अ फैक्ट ही रखूं विदाउट मेकिंग अ स्टोरी आउट ऑफ दिस फैक्ट, तो सॉर्टेड. दैट इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. बट अगर मैं बोल रही हूँ कि नेगेटिव हो रहा है कुछ, तो यू आर ब्रेकिंग दैट कनेक्शन विद योरसेल्फ. ट्रू. सो विच मीन्स सेल्फ लव में इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, एंड हम उसको एसोसिएट करते हैं वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव. And once we take it negative, then ultimately it's a negative thing, and we Yeah, won't be able to grow in that. But rather than taking it negative, हम लोग उसको accept कर सकते हैं कि यार ये मेरी weakness है, ये मेरी strength है, I can work on my weakness even more and so on, so that I can grow in that field exactly. as well if it's priority. Exactly. Yes. Perfect. That's how it should be. Perfect. Perfect. The fourth statement is that self-love is a one-time achievement. No, it is a lifelong process. It's a life. It's, you have to consciously do it every single day. It's like आप हर रोज खाते हो, आप हर रोज नहाते हो, आप हर रोज सोते हो. So it's a practice that you have to include in your lifestyle. आप Perfect. जब उसको हटाना बंद कर दोगे, it's like if you stop brushing your teeth for 10 days, to decay will happen. Correct. तो आप if you stop doing suddenly कि हाँ मैंने अचीव कर लिया, फिर stop doing it for the next 10 days, Mm-hmm. तो गड़बड़ होगी. मेंटेनेंस के लिए वो हैबिट को हर रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा. True. इट्स अ लाइफ So लॉन्ग it's a myth. प्रोसेस. It's a myth. Yes, It's like a yes, lifetime yes, process. Perfect. yes. And No. the last statement is that self-love means you don't need others. Okay, this is a very interesting question क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि इसको मिथ में डालेंगे कि इसको फैक्ट में डालेंगे. बिकॉज
we are human beings. We Correct. have to be social. We are social animals. Correct. We are in a family because relationships are supposed to be important for us. True. So self-love is you improve your connection to yourself so that you can improve every connection in your life, your Okay. family, Mm-hmm. your friends. तो इट्स लाइक इट्स अ टीम वर्क. इट्स नहीं कि अगर आपको सेल्फ लव आ गया तो यू कैन सर्वाइव लाइफ लॉन्ग. बहुत लोग इस केस में जब दे लव देमसेल्व्स अ लॉट वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो ना इतना अकेले रहने में कंफर्टेबल होते हैं कि अल्टीमेटली दे डू स्टार्ट फीलिंग लोनली. क्योंकि हमें एसोसिएशन चाहिए होता है. लाइक फॉर एग्जांपल a group of software engineers need that association of software engineers around them. True. A group of Krishna Bhakts will need a lot of Krishna Bhakts around them to Correct. feel connected, to feel strong. So a group connection only builds when you are connected to yourself. तो सेल्फ True. लव के साथ आपके बाकी कनेक्शंस के साथ is how you grow forward in life. It's not this Perfect. or that. It's a combination of two Combination. that Correct. works. Yes. Correct. It's not extremes. It's like Yeah. mediocre. दोनों ही बीच हाँ में. हाँ, You have to work दोनों on का कुछ yourself. बैलेंस की how much do you want to give to what that works for you in order to go to the next step. हो सकता है बाद में आप ये क्या कहते हैं पोर्शंस चेंज कर सकते हो बट इट हैज टू गो टुगेदर. इट कैन नॉट, इट्स नॉट अ सेपरेट एंटिटी. Perfect. And the last question for this podcast is that if you get a chance to go back 5 years, plus आपको पता है कि like because right now we are in 2024, mid of 2024, तो in mid of 2019 you know कि 2020 में COVID आने वाला है, everything is going to get shut down and so on, right? So what are the changes which you would like to do in yourself, या फिर क्या messages आप खुद को दोगे? It could be one message, 3 messages or 5 messages as well. COVID hasn't been a problem in my life क्योंकि it gave me the right opportunities. So I don't think I want to change anything, but I would want to tell that 2019 वाली मालविका को कि लगे रहे, हार मत मान. Keep Perfect. at So it. this is the Keep only one? going. Keep believing in yourself. There will be Perfect. moments when you will feel कि it's not for you, but it is for you. That's why you are there. That's true. And any last advice which you would like to give to our audience, those who are watching till the end of this podcast? The best advice that I have picked from a lot of mentors and a lot of gurus कि कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हें सब आता है, Okay. क्योंकि नहीं आता है. अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन तुम्हारे पास नहीं है तो तुमने एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करना. True. क्योंकि वो प्रॉब्लम 1000 लाख लोग सॉल्व कर चुके हैं. इट्स जस्ट दैट कि तुम्हें उस बारे में पता नहीं है. True. इट्स जस्ट दैट तुमने अभी तक ढूंढा नहीं है. देयर विल ऑलवेज बी अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम. You just That's have true. to invest in yourself, value yourself in a way कि तुम उस प्रॉब्लम से सॉल्व करके आगे बढ़ो. क्योंकि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स लिखी हैं, एक्चुअली लिखी हैं, हर बार रहेंगी लाइफ में प्रॉब्लम्स, दैट्स देयर. बट यू हैव टू True. बिल्ड योर कैपेसिटी टू सॉल्व देम एंड यू बिल्ड True. दैट कैपेसिटी इन अ वे कि जैसे मसल बिल्ड होती है, यू हैव टू ऑल्सो बिल्ड दैट दिस मसल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कि मैं प्रॉब्लम में हूँ. इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम आई वुड वांट टू फिक्स इट. मुझसे हो रहा है, अच्छी बात है, आई गिव माई सेल्फ अ टाइम टू फिक्स इट. किया, नहीं हुआ, किया, नहीं हुआ, आउटसोर्स इट. किसी एक्सपर्ट से सलाह लो जिसने वो प्रॉब्लम सॉल्व की है. इन्वेस्ट योर टाइम इन इट. इफ यू डोंट हैव टाइम, इन्वेस्ट योर मनी इन इट, but invest in yourself because that is the most important thing that you need to invest in. Gold, कपड़े, gadgets, this is all secondary. क्योंकि Correct. अगर तुमने इस सब में इन्वेस्ट किया है, you are not trained to extract the best out of these investments. But अगर तुमने खुद में इन्वेस्ट किया, you will always be resourceful in life. You will always have that mindset that I will figure everything out. I have access to my ability to solve problems and I will get out of this one. I will move to the next one. I'm ready for anything that comes my way. So you have to build that mindset key.
हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. इट्स मी हु इज नॉट चूजिंग टू सॉल्व इट. इट्स That's really ऑलवेज true. दिस. That's दिस really इज true. व्हाट आई वुड टेल एवरीबडी, बिकॉज कोई बोलता नहीं है ये सब. मुझे भी किसी ने बोला नहीं था कभी ये. आई डिस्कवर्ड इट ऑन माई सेल्फ. आई हर्ड अ लॉट ऑफ मेंटर्स टॉक अबाउट इट टू. सो आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज. क्योंकि इफ यू आर नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, यू आर चूजिंग टू लिव अ लाइफ ऑफ सफरिंग. So And not वो choosing प्रॉब्लम is बहुत also बड़ी a हो जाती है फिर. choosing. True. Not choosing is also a choosing that you're True. doing. Not That's making a true. decision is also a decision that you're doing. Correct. And in fact, यहाँ पे एक और point है which I got, I don't know, from a podcast or from any spiritual statement or a podcast, I don't remember, but उसमें ऐसा था कि like lot of people do pray to God कि यार मेरी life में ये सारे problems खत्म हो जाएं, ये वो हो जाए. But instead of that, we should pray कि यार जो भी problems आए, like जो अभी problems हैं या फिर जो आएंगे, give me the capability to figure out those problems and be bigger than that. बिकॉज दैट्स Exactly. व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई मेंटर्स की लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी है विच मीन्स यू आर स्मॉलर, बट इफ यू गेट बिगर तो Absolutely. ऑटोमेटिकली आपको वही सेम प्रॉब्लम छोटे लगने लग जाएंगे. एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड. इट वाज लाइक पोस्ट कोविड समवेयर अराउंड 2021 या 22, जो भी प्रॉब्लम्स तब मैंने फेस किए थे तब मुझे बहुत बड़े लगते थे, बट नाउ इफ आई लुक Hmm. अप टू दोज प्रॉब्लम्स मुझे बहुत छोटे लगते हैं. इनफैक्ट आई सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स वेरी इजीली. So that's how Hmm. life is all about, and that's what I feel the great answer, as you mentioned, ki not taking a decision is also a decision. बिल्कुल. That's true. Absolutely. So that's the podcast. Thank you so much, Malvika ma'am, for being on our podcast show. I really enjoyed and I really learned a lot. हमने सेल्फ लव के बारे में पहले भी पॉडकास्ट किया था, बट अगेन दिस वाज स्टेप 2 ऑफ सेल्फ लव. बहुत सारे इमोशंस को हमने बाहर लाया कि कैसे उनको फिगर आउट किया जाए एंड व्हाट आर द bad consequences and good results which we can get if we handle our emotions. So thank you so much for taking out time and being on our podcast show. Thank you so much, Sahil. I also enjoyed it a lot. And I hope कि यहाँ से a lot of people can get that value and change little things from their life where they can improve and reach to greater heights. Definitely. So that's the end of this particular episode. I hope that you learned a lot from this masterpiece, which was created by the presence of Malvika ma'am on our episode. Please do make sure that you check out all her social media links, all her programs, which are given in the description section. Also, whatever takeaways you had from this particular episode, do share below in the comment section and hit the like button and subscribe to our YouTube channel so that you can keep getting updates for upcoming episodes of the Achievers Club podcast show. And I look forward to see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.